To remain updated with the latest business news, click on the bell icon. Hello and welcome. You're watching Business Today. I'm Sakshi Batra, and joining in is a very special guest with me. Hemang Jani joins in. He's the head equity strategist at Motilal Oswal Financial Services, and he's going to help us understand post the budget, how should you and I as investors really approach the stock markets? What's in it for the stock markets from here on? Thank you so much, Mr. Jani, for taking our time and for this interesting discussion. I want to begin by asking you to first start off with the budget, reaction only. Do you think this union budget has struck all the right chords, or at least enough not to really derail the sentiment at a time when we have been swamped with the negative global factors of inflation, of interest rate hikes, of the oil prices and the geopolitical crisis? How do you see this budget really maneuvers all of this? So thanks for having me, Sakshi. I think budget as an event is out of the way, and what we feel is that there were no major negative surprises. Yeah. And there is a continuation of the growth orientation that was laid down in the last budget. So despite resource constraints, the way the entire exercise has been undertaken in a very transparent, conservative and an honest manner, definitely would be taken well by the market, and which is what we have seen in the last 2 days, that the market reaction has been quite positive. And we think that most important takeaway is that despite the state elections and the lower strata of the group having so many difficulties, there was no freebies or populist measures. Yes. So that, I think, is a very big signal from the government that they really want to focus upon the productive growth versus the freebies, and no major disappointment. So net basis, I would rate it as a very transparent, honest and conservative budget. Okay, transparent, honest and a conservative budget right there, and no shocks or surprises right there. Definitely a big positive. No freebies and no populist measures, also a positive in the budget. But right, how before the budget we used to talk about how the Fed commentary outlook on 2022 is a big risk. The budget coming in is a big risk. Now both these events are behind us. On the budget front, we know it's all about capex and spending on infra and on various sectors as well. On the Fed part also, there is no uncertainty now. We know that there will be rate hikes happening. Whether it is 2, 3, 4 or 5 is just a matter of time that we will get to know. But what next? How do you see budget and these two factors really changing the market positioning now? So the market positioning is very clear. The quarterly numbers are looking quite good across multiple sectors, and at aggregate Nifty level, we are seeing a decent growth in the top line. Of course, there are margin pressures because of the way the input cost has gone up. Yeah. But by and large, we are seeing good numbers. And, because now we have a fair bit of clarity about how the liquidity situation globally is going to shape up, and the rate hike, the market has started pricing that in. So overall, we think that, unlike last 2 years, you will not have a big broad-based rally, but the earning momentum is very positive. So at an index level or at a broader level, in terms of index heavyweights, we see the markets doing pretty well from a medium to long-term perspective. Okay, understood that. Now, post the budget, since the budget had a whole lot of thrust on capex, I want to understand from you, where will your thrust be in terms of investment in the markets right now? Have you seen or filtered out some sectors that you will be bullish on this year? Absolutely. In fact, we feel that in the current scenario, you should not make any dramatic changes to your portfolio strategies just because of budget. Of course, yeah, the focus of the budget is on the capex, so there is going to be some focus on that. But on an overall basis, we feel that the banking sector, or let's say telecom sector, some of the consumer discretionary names, so names like Titan, Jubilant FoodWorks, even metal stocks, we would continue to have a focus and positive view on those. Also, Sakshi, I would like to highlight that 2 sectors could go through a bit of a subdued movement, particularly post-budget. One is the
auto sector, which was particularly two-wheelers, which was going through some sort of difficult times, but there was Right. no package for them. And the rural sector, which was going through a bit of a slowdown and lull, there is no Yes. specific, attempt to revive that. So these two sectors could be a bit subdued, but the rest of the sectors we think will have a positive impact. ओके जिस तरीके से अभी आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार को अभी इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को आपने चुना है जहां पर डेफिनेटली मोमेंटम अच्छा रहेगा। बजट से पहले हम 2-3 बड़े रिस्क फैक्टर्स की बात करते थे, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स हो गए, क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गए, या फिर हम ये मान रहे थे कि इस बजट को डेफिनेटली कंजम्पशन और डिमांड को केटर करना बहुत जरूरी है, लोगों के हाथ में पैसा डालना चाहिए, क्योंकि अभी भी पैंडेमिक के पहले के लेवल पर कंजम्पशन वापस नहीं पहुंचा है। तो अब इस तरीके का कोई अनाउंसमेंट डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के लिए नहीं आया है, तो इन सब रिस्क को मार्केट्स किस तरीके से आगे देख रहे हैं? क्या ये अभी भी बड़े हो सकते हैं, मार्केट्स के लिए अड़चन पैदा कर सकते हैं? ये हमें ध्यान में रखना होगा कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है रूरल सेक्टर को देने के लिए, या फ्रीबीज जो उन्होंने नहीं दिए हैं, या जैसे ऑटो सेक्टर के लिए हम लोग उम्मीद कर रहे थे जी। तो ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन था, पर रिसोर्सेस कंस्ट्रेंट के कारण नहीं दे पाए, तो वहां पे थोड़ा सा उसका असर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बट ये मानना चाहिए कि अगर ग्रोथ ओरिएंटेशन चालू अगर रहता है तो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स पे भी आ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई ऐसा कंसर्न है। ऑफ कोर्स ये ध्यान में रखना जरूरी होगा कि ग्लोबली और इंडिया में अगर इन्फ्लेशन एक लेवल के ऊपर जाता है और इंटरेस्ट रेट पे वो प्रभाव उसका आता है, तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट को वो अफेक्ट करेगा। डेफिनेटली। एक जो इंटरेस्ट रेट्स की हम बार बार बात कर रहे हैं, अब ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि यूएस फेडरल बैंक और यूएस सेंट्रल बैंक जो है अब वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा, तो हो सकता है कि डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक आरबीआई भी इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। अब फरवरी 9 को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई डायरेक्शन हमें पता चलेगा कि कैसे आरबीआई आगे बढ़ने वाला है। लेकिन मार्केट्स के लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन्वेस्टर्स को बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को कैसे रीड करना चाहिए? क्या ये मार्केट्स के लिए हमेशा नेगेटिव होते हैं, या फिर उनको अपने इन्वेस्टमेंट्स पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आरबीआई रेट्स बढ़ाता भी है तो भी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने साक्षी। इंटरेस्ट रेट एक मेजर्ड पेस में अगर आगे बढ़ता है थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ होलसेल प्राइस और सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, ये इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप बैंकिंग सेक्टर की भी बात करें तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो उनके स्प्रेड है बैंक्स के, वो थोड़े बढ़ के आते हैं, और क्रेडिट ग्रोथ है वो भी बढ़ के आती है, बिकॉज देयर इज अ डिमांड इन द इकोनॉमी। तो ये एक पॉजिटिव चीज है इफ दे आर मूविंग अप इन अ ग्रेजुअल वे। सो मैं समझता हूं कि बॉन्ड मार्केट की जो रिएक्शन थी, लगभग 20 बेसिस पॉइंट का जो स्पाइक आया, वो एक नीजक रिएक्शन था। जब ओवरऑल एक बैलेंस असेसमेंट वो लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां पे भी एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा इक्विटी मार्केट्स के लिए रिस्क है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो पी रेटिंग होता है वो इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक्ड होता है। जैसे अबंडेंट लिक्विडिटी थी तो सारे सेक्टर, सारी कंपनीज, आईपीओ, स्टार्टअप, सभी लोग अच्छा कर रहे थे जी तो जी। अब जब आप परफॉर्मेंस नहीं देखोगे तो उस पर एक नेगेटिव रिएक्शन भी आएगा, और मार्केट विल बी लिटिल मोर सिलेक्टिव कि कहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की, और आपने बहुत अच्छे से भी समझाया कि क्यों कुछ सेक्टर्स आगे बढ़ रहे थे। हमने पिछले 1 साल में ये बहुत बड़ा ट्रेंड देखा कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स, ग्रोथ स्टॉक्स, हाई पी स्टॉक्स के ऊपर लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे। क्या बजट के आने के बाद ये सिनेरियो में कुछ चेंजेस आएंगे? क्या ऐसा आपको लगता है कि क्योंकि अब सरकार ज्यादा कैपेक्स पे बिलीव कर रही है, वापस से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को जागृत कर रही है, ऐसे में इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करना शायद ज्यादा बेहतर रहेगा? डेफिनेटली साक्षी, ये जो आईपीओज में जिस तरह के वैल्यूएशंस और हाइप क्रिएट हो रहा है, और काफी सारी कंपनीज में जहाँ पे वैल्यूएशंस हाई है और परफॉर्मेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं इजी लिक्विडिटी का दौर जब खत्म होता है और लिक्विडिटी टाइट होती है या इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर आता ही है, और वो अच्छा भी है। तो
वो मनी फ्लो डाइवर्ट होगा जहां पे अच्छी परफॉर्मेंस है, जहां पे ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा हेल्दी रीबैलेंसिंग होगा स्टॉक मार्केट के लिए और इकोनॉमी के लिए भी। जी, एब्सोल्युटली। आखिर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे बजट से पहले कई थीम्स आगे आ जाती हैं। जैसे आप फर्टिलाइज़र में निवेश कर लीजिए, रेलवे स्टॉक्स में निवेश कर लीजिए, एथेनॉल के रिलेटेड स्टॉक्स में कर लीजिए, क्योंकि इन पे अक्सर कोई ना कोई अनाउंसमेंट आता है, इंफ्रा पे इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन इस बार की बजट स्पीच में शायद ही ऐसा कोई सेक्टर होगा जिसका नाम नहीं लिया गया। ईवीज़ भी थे, ऑटोज़ भी थे, सोलर फोकस भी था, रिन्यूएबल एनर्जी, सारे फोकस थे। लेकिन ऐसे में अगर इन्वेस्टर्स को चुनना हो अपने लिए कुछ सिलेक्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए बजट के बाद, खास तौर पर ये ध्यान रखते हुए कि पिछले 2 साल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने मार्केट्स में देखा, शायद उस तरीके का मोमेंटम ना देखा जाए, तो ऐसे में बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? कैसे मैं अपने बाजार में अपने इन्वेस्टमेंट्स को पोच करूं और प्रेजेंट करूं? देखिए साक्षी, जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स है वो सिर्फ बजट में नहीं होती है, बजट के बाहर भी लगातार होती रहती है। जैसे पीएलआई स्कीम हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया और काफी सारी चीजें। जी जी। तो जो पोर्टफोलियो है उसको ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ और बाकी के वैल्यूएशन फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। तो उसमें सबसे मुझे बढ़िया बैंकिंग सेक्टर लग रहा है, पर्टिकुलरली जो लार्जर बैंक्स है, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। मुझे लगता है कि ये ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ और बेटर स्प्रेड्स के चलते हुए बड़ा री रेटिंग उसमें होगा। तो वो एक बहुत बढ़िया अच्छी स्पेस हो सकती है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में काफी पॉजिटिव लग रहा है। टाइटन के नतीजे आज आए थे, काफी बढ़िया नतीजे थे, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट था। डेफिनेटली देख सकते हैं। जुबिलेंट फूड में थोड़े नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, बट ये पूरा जो थीम है वो हम समझते हैं कि 1 या 2 साल के हिसाब से अच्छा रहेगा। लॉजिस्टिक्स के अंदर हम काफी पॉजिटिव है। जो रेंटल यील्ड्स है वो बढ़ रहे हैं लॉजिस्टिक्स कंपनीज के, और कॉस्ट का काफी हद तक ऑप्टिमाइजेशन हो गया है। और फार्मा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? खास तौर पर इस इंडेक्स ने काफी गिरावट देखी भी है हाल में, 8-10% तक की, और पिछले 2 साल में कोविड के चलते काफी फोकस में रहा है हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा स्टॉक्स, हॉस्पिटैलिटी, इन सब पे आगे कैसे बढ़े? फार्मा सेक्टर थोड़ा सबड्यूड लग रहा है, उसमें सिलेक्टिवली सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी में हमारा व्यू पॉजिटिव है, बट ब्रॉडली परफॉर्मेंसेस इतने पॉजिटिव नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सिलेक्टिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए फार्मा में। जी, अगर जैसे निफ्टी और सेंसेक्स को लेकर अगर आपको कुछ इस साल का कुछ आउटलुक देना हो कि कैसे रहने वाला है और कैसे इन्वेस्टर्स अप्रोच करें, इंडेक्स लेवल को कैसे देखें, तो आप क्या राय देंगे? देखिए, ये साल में 36% का अर्निंग ग्रोथ हम देखने जा रहे हैं और अगले साल लगभग 14-15% का। तो मैं समझता हूं कि इतनी रैली होने के बाद भी ये साल में 15 से 20% की इंडेक्स लेवल पे ग्रोथ हम देख सकते हैं। और उसमें 4-5 ये जो मेजर सेक्टर्स है वहीं पे फोकस करना चाहिए। मेटल्स, टेलीकॉम, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, these are the sectors जहाँ पे, और IT of course, IT is going to be the important one, वहीं पे फोकस करना चाहिए। जी, ओके, तो चलिए इसी नोट पर मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया देना चाहूंगी कि आपने ये सारी इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करी और बताया कि अलग-अलग फैक्टर्स बजट के बाद कैसे बाजार को इम्पैक्ट करने वाले हैं, कैसे सेक्टर्स का चुनाव करें और इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए अगले 1 साल में। बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हेमंत जी और हमारे साथ शेयर करने के लिए अपने सभी इनसाइट्स। थैंक यू साक्षी। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.